is passing through a is passing through an input, that is it is enter into the not running state, that is been dispatched into a running state. After completion of running state, it goes to exit, and exit way is where the buffer is registered. Okay, so the state is saved into an exit buffer, where all the coming all the completely finished process is available. So all the processes are available at the end of the exit. So for at the time of entry and at the time of exit, both the buffer will manage each and every process and its status of a process, whether it is complete or incomplete. For a while, it may happen that during the execution something goes wrong. Okay, for example, any kernel process comes. Okay, as in earlier lectures also we have stated, if a person is running and prime minister is running, the highest priority will be of the kernel, the prime minister. In the same fashion, if a normal process is under the execution, and at the same time if the kernel process comes for the execution, the highest priority will be of kernel process. And while any user process is under execution or in running state, will be will be printed out, that is will be stopped or will be given a pause, and it has to wait till the kernel process gets finished. Okay, so once the kernel process gets is finished, the execution of last process which was held under the wait condition will again will start executing from where it was. Okay, if half execution has been done, half will be executed in the next running session. So the next running will be executed which was under the waiting state. Okay, so this was about the two-state process model. And then we have seen the process control block. So each and every process has these different number of the blocks. In each and every block, it states something like process states, process number, program counter, the register, memory limits, list of open files, and many more. The CPU time, input output device, everything is available over the process control block. So process control block keeps track of each and every process running out and running in over the process over the processor. Okay, so let us start for the new discussion of process state, that is five-state process model. So here we have a first, second, third, fourth, and fifth five-state process model, and which is highly important for all your examination with respect to your curriculum. Okay, with respect to your career also, with respect to your social the direction also. So each and every portion is very important. So let us move towards your the five-state process model. In many different number of books, you can see different number of different types of diagram. Okay, so don't get confused over the diagram, because the central idea of all diagrams designed by different number of authors is the same. Okay, so let us start for the five-state process model. So, so here, as it is been, the process is created. Okay, once you click somewhere, the process is created. If I click, so if I am clicking somewhere, okay, so if I click here, the process will execute the next coming slide. That is, the click has an event that will create a process instructing to a processor for the next coming slide.
Okay, so pointer will increment to the next slide from where it was. So the process is created somewhere here, and it is been lined up over the process, over the buffer space. So each and every buffer space will move towards the ready state. Ready means it will ask the processor that I am ready for the execution. Okay, if I'm ready for the execution, then what, it will move for the running state. Okay, for example, if in LDRP, if someone is very interested over the sports, and sports days are being celebrated in somewhere, some students or 5 to 7 students are there for the 400 running race. Okay, so what happens, every candidate or every sportsman lined up for the race. Okay, so one by one, each and every player will be lined up at its pre-located or pre-designated lane. Okay, so क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है, वो सारे सारे प्लेयर हर एक लेन के अंदर जो उनको दिया गया है, दैट इज लेन नंबर 1 2 3 4 और 5, पांचों पांच प्लेयर अपने डेजिग्नेटेड और प्री डिफाइंड पॉइंटर पर रहेंगे. ओके, पॉइंटर मींस प्री डिफाइंड लेन पर अरेंज हो जाएंगे as the all the different number of process will be lined up over the processor. So what happens over here, it is similar to like this. So this is what is my processes. Okay, so this is for first process, this is second process, this is third process, then fourth. Okay, so and fifth as well, the sixth and the seventh. So for each and every time, what happens, the process will move from, sorry, process will move from here to here, then second process, then third process, then fourth, sorry, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh. So for each and every process will start executing from buffer space. This is known as, we can say it is a buffer space. We use WF here, buffer. Okay, so from a buffer will start executing each and every process one by one with the help of process control block. Okay, so that is PCB, with the help of process control block. So process control block will take care of each and every process lined up over the buffer. Okay, so with respect to it, each and every process will execute into ready. That means this buffer will have a process. Let us give a number, that is, uh, for example, this is process number A. This is process number A. So process number A will be available at the running state. Okay, likewise, then B, so it will go with the B. Okay, B. The yes or say B. So likewise, different number of process will lined up. पहला A आवશે, પછી B आवશે, then C, और उसके बाद आएगा D, जितने नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर एग्जीक्यूशन में जाएगा. Now, as soon as the buffer is triggered, और द रेस कंडीशन, जैसे 5 बंदे हैं, 5 लेन के अंदर खड़े हैं, और जैसे ही रेडी स्टेडी गो कहें,
मतलब गो कहेंगे तो क्या होगा, सारे नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो सारी कहाँ पर जाएगा, एग्जीक्यूशन में जाएगा, स्टार्ट रनिंग। ठीक है, okay, so each and every process will start executing, but whoever is the first for the execution will go into the execution। ठीक है, इसमें I think so someone must ask a question। ओके, कोई तो बंदा होगा जो मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों कि ए है या बी है सी है, उसमें से सिर्फ पहला आया वही जाएगा, लास्ट आया वो नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो सो यू आस्क मी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ द प्रोसेस मूव्स इनटू द रनिंग स्टेट। जैसे रनिंग स्टेट में गया, इट विल एग्जीक्यूट फॉर एग्जीक्यूशन, एंड वंस द एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड, एक बार एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद क्या हुआ, खत्म सक्सेसफुली हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर बफर है इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनपुट बफर। क्या कहेंगे इसको, इनपुट बफर, दैट इज आई ओ बफर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बफर यहाँ पर होगा। इन द सेम फैशन इफ वी हैव, यहाँ पर क्या होगा, दूसरी एक बफर क्रिएट होगी। ओके, लाइकवाइज ईच एंड एवरी बफर विल बी देयर, ईच एंड एवरी बफर विल बी क्रिएटेड। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट बफर है। ओके, उसके बाद दूसरा, देन तीसरा, जो दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर है आईओ बफर, देन आउटपुट बफर है। क्या है, दिस इज नोन एज आउटपुट बफर। सो as the different number of processes are lined up, what happens over here, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हुआ, जैसे ये जो है वो क्या है, प्रोसेस नंबर ए है तो फिर ये आ जाएगा। ओके, देन बी, ओके देन बी, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन बी, तो फिर बी एग्जीक्यूशन में जाएगा। ठीक है, जैसे ए एग्जीक्यूशन में आया, इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग ए। ओके, एग्जीक्यूशन होने के बाद वो रनिंग में जाएगा। ओके, रनिंग में जाने के बाद वो एग्जीक्यूशन में कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। कहाँ पर जाएगा, टर्मिनेट होने के बाद वो जाएगा यहाँ पर एग्जिट में। सो इट विल बी लाइंड अप ओवर हियर। ओके, फॉर बी, उसके बाद कौन सा आया, बी आया, तो ओके बी इज, ओके बी आया, बी का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद बी कहाँ गया, एग्जीक्यूशन में एग्जिट हो गया। ओके, सो एग्जिट हो गया। नाउ व्हाट, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ से होकर रेडी स्टेट में जाएंगे, तो क्या होगा, सबका एग्जीक्यूशन होकर उसका एग्जीक्यूट टर्मिनेट होने के बाद वो यहाँ पर आउटपुट बफर में लाइन अप हो जाएगा। दिस इज अ सिनारियो नंबर 1। ठीक है, गौर से सुनिए, दिस इज अ सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 1 मतलब जिसके अंदर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, मतलब क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद वो रेडी में गई, रेडी होने के बाद रनिंग में गई, रनिंग में जाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद उसका आउटपुट बफर में आउटपुट जो है वो सेव हो चुका। दैट मीन्स द प्रॉपर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग इज डन। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी हो चुका है। समझ में आया। सो इसमें कोई डाउट, जैसे मैंने पूछा था कि इसमें कोई डाउट है। सर इसमें कॉन्करेंट प्रोसेस नहीं हो सकती, कॉन्करेंट दो तीन प्रोसेस, प्रोसेस साथ में रन हो रही हो। ओके वेरी गुड। और दूसरा कोई, कॉन्करेंट प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे भी एज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्करेंट प्रोसेस, ओके नंबर 1 तो कोई एक ही आएगा। समझ में आया,
जैसे यस सर। लेन के अंदर सारे रेसर जो है वो रेसिंग में है, और सारे पांचों पांच बंदे दौड़ रहे हैं, लेकिन नंबर वन तो किसी एक का ही आएगा, सबसे पहले सर कंप्लीट तो बच वो जाएगा कौन। उसका क्या? हाँ, हाँ उसका। जो बाद में रह जाएगा उसका क्या? Very good. So one by one, that is what here we have in here we are going to arrange each and every process in such a manner that only single process goes for the execution. मतलब यहाँ पर हम ऐसा एक शेड्यूल बनाएंगे, मतलब एक मॉनिटर बनाएंगे कि भाई पहले तू खड़ा हो, उसके बाद तू खड़ा हो, उसके बाद वो कॉर्नर वाला खड़ा हो, उसके बाद वन बाय वन हम एक एक सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन मतलब रनिंग स्टेट में जाने देंगे। ठीक है। सो रेडी होने के बाद क्या होगा, सारी प्रोसेस रेडी है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। नाउ एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर क्या होगा, सारी की सारी एक साथ दौड़ पड़ेंगी तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन में कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है। सो अब क्या करना है कि भाई सारी की सारी प्रोसेस को लाइन अप हमने जैसे बफर में किया, वैसे रेडी बफर के अंदर क्या होगा, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है। इनटू द नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन विल लर्न अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये प्रोसेस स्टेट्स खत्म होने के बाद उसका आएगा प्रोसेस शेड्यूलिंग। So this there are many different number of schedulings. So each and every schedule will have its own priority. Okay. So with normal execution जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसमें क्या आया, ए आया पहले तो वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, उसके बाद बी आया तो बी एग्जीक्यूशन में गया, सो एंड सी आया तो सी भी एग्जीक्यूशन में जाएगा। सो इफ वी हैव फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो आया वो पहले जाएगा। इफ वी यूज लास्ट इन फर्स्ट आउट तो क्या होगा, पहले सी मतलब पहले अगर लास्ट में सी आया बी आया तो बी एग्जीक्यूशन में जाएगा, उसके पहले कौन आया था, ए आया था, तो लेकिन पहले बी गया उसके बाद ए जाएगा, और उसका एग्जीक्यूशन भी वैसे ही होगा। बी और आउटपुट बफर में जो भी सीक्वेंस एग्जीक्यूशन में गई है उसमें वही आएगा, जैसे बी उसके बाद ए उसके बाद जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस आई है वैसे ही एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ scheduling algorithms through which we schedule each and every process for the execution. Okay, अभी concurrent, there are different number of concurrent process जिसको हम उसकी प्रायोरिटी के बेस के ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे क्रिएट, रेडी, रन, रनिंग एंड टर्मिनेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि into last lecture also, in this lecture also we have discussed, if a user is running and along with a user, if a kernel process gets execution, okay, if kernel process is created and it is under a ready state, then what happens, suddenly user process will be blocked or comes under the waiting state or the pause, under the pause state or waiting state. Okay, pause ko, waiting ko or hold, but those same similar चे. So what happens if a user process A is under the execution और कर्नल ने कोई प्रोसेस जनरेट करी। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर कर्नल ने प्रोसेस सी एग्जीक्यूट करी, तो क्या होगा, सी विल डायरेक्टली गो इनटू द रेडी स्टेट एंड विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। अभी क्या हुआ, जब उस अब वो रनिंग स्टेट में जा रहा है तो उसने क्या देखा, ओ अभी एक प्रोसेस तो यूजर प्रोसेस ए इज अंडर द एग्जीक्यूशन। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, तो as we discussed highest priority will be of kernel process। तो कर्नल क्या करेगा,
ये जो यूजर प्रोसेस जो अभी अंडर एग्जीक्यूशन है, मीन्स रनिंग स्टेट में है, उसको प्रिंट करेगी। प्रिंट करने के बाद वो एग्जीक्यूशन में स्टॉप होने के बाद वो फिर से रेडी, फिर से उसको ब्लॉक, मतलब ब्लॉक स्टेट में जाएगी। ब्लॉक स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, कर्नल प्रोसेस विल अगेन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस, कर्नल प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा और कर्नल प्रोसेस टर्मिनेट और वी कैन से इट इज एग्जिट फ्रॉम द रनिंग स्टेट। सो कर्नल प्रोसेस भले ही लास्ट आई हो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा, बिकॉज इट इज द नेसेसिटी ऑफ a system to execute the kernel, because a system never generates any unnecessary process. Okay, प्रोसेस कभी, सिस्टम कभी बगैर जरूरत, मीन्स कोई जरूरत बगैर कोई प्रोसेस जनरेट नहीं करती। और अगर कोई प्रोसेस जनरेट करती है तो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। ओके, तो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद जो भी यूजर प्रोसेस ए जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, कर्नल की सी जो एग्जीक्यूशन हुआ वो क्या होगा, उसके बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होने के बाद सी में चला जाएगा। ओके, तो फिर ए जो बची वो कहाँ पर जाएगी, उसको ब्लॉक्ड है, तो after execution it will be unblocked, will go into the running ready state, and once again it will move towards the execution, and again it will start executing over the here. So here the whole triangle will be followed with respect to blocked state. Okay, so we have seen three state, that is ready, running, blocked. Any doubt? एक डाउट आना चाहिए। बताइए। सर हाँ, अगर दो कर्नल प्रोसेस होगी तो सर उसमें सिलेक्शन कैसे होगा? दो कर्नल प्रोसेस होगी तो जो प्रोसेस, जो भी कर्नल प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन सिमिलर ही होगा, जो पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी आया, ठीक है, ओके, डी आया तो क्या होगा, सॉरी, डी आया तो क्या होगा, तो डी एंड सी बोथ आर कर्नल प्रोसेस, सो उसका सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूशन होगा। जैसे डी सी में हुआ उसके बाद डी का होगा, एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड विल कम ओवर द डी लाइकवाइज। समझ में आया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 नंबर। फोर्टी एट, 7, 15, ध्रुवीन, अनिकेत 63, कोई तो আছে जागतो। सर प्रोसेस और जो ए को रिसोर्स नहीं मिले तो क्या होगा, वो सस्पेंड स्टेट में जाएगा। अगर सस्पेंड स्टेट में रहने के बाद फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 10, टी इक्वल टू 15, टी मीन्स टाइम इक्वल टू 10, टाइम इक्वल टू 15, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स और 20 मिली सेकेंड्स के लिए वो यहाँ पर वेट करता रहेगा अब स्टेपुलेटेड टाइम के लिए। अगर स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो वो विल रिमेन इन सस्पेंड स्टेट। अगर सस्पेंड स्टेट में रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको पैरामीटर मिलेगा,
as soon as the parameters are available for process A, so it will resume for the execution और वो execution होकर terminate में जाएगा. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Okay, that is it will move over here to here, and after execution of A, after suspend state, जब उसको पैरामीटर मिल गया तो वो रेडी स्टेट में जाएगा. दैट इज फ्रॉम हियर इट मूव्स टू द एग्जीक्यूशन एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ओवर द रनिंग स्टेट. नाउ एक और सिनारियो है, क्या है कि ब्लॉक स्टेट में है. ठीक है, जैसे ब्लॉक के अंदर, जैसे किसी ने मतलब यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, ओके, एंटरमेंट नंबर 25, क्या पूछा कि अगर एक से ज्यादा कर्नल प्रोसेस है तो क्या करेंगे. बात सही है ना, एक से ज्यादा कर्नल प्रोसेस है तो क्या करना है उसके अंदर, तो it has to wait. In the same fashion, if in a block state, if we have more than one process is in blocks or block state, or we can say in suspend state or blocked suspend, मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक स्टेट में है तो क्या होगा उसका भी, जैसे ये है ए, देन उस बी, ओके, उसके बाद कौन सा आया, शायद ई है, उसके बाद आया एफ आया शायद. ठीक है, तो ए बी ई एफ वो सारे सीक्वेंस में ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं, तो क्या होगा, जब तक इनका एग्जीक्यूशन नंबर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर बफर स्पेस है, यहाँ पर बफर स्पेस है, इन द सेम फैशन वील हैव अ बफर स्पेस ओवर द ब्लॉक स्टेट. तो वन बाय वन जिसका शेड्यूलिंग के बेस के ऊपर और विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स, जैसे ए इक्वल टू 5 है तो उसको मिल गया तो वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, और नहीं मिला तो इट विल वेट फॉर अनडिफाइंड टाइम, दैट इज टाइम इक्वल टू 5 10 15, जब तक उसको पैरामीटर नहीं मिलेगा तब तक. अगर उसको पैरामीटर मिल ही नहीं रहा है तो इट विल, द प्रोसेसर विल शिफ्ट दिस ब्लॉक प्रोसेस फॉर सस्पेंड प्रोसेस, दैट इज ब्लॉक्ड सस्पेंड में जाने उसको मतलब उसको भेज देगा, मतलब अनडिफाइंड टाइम के लिए वो भेज देगा. कहाँ पर, सस्पेंड स्टेट में. और फॉर मीन वाइल अगर उसको सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद सारे रिसोर्स फ्री हो चुके तो क्या होगा, उसको रिसोर्स मिल जाएगा, वो रेज्यूम करेगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पर वो ए प्रोसेस ऐसे गई, फिर उसको रेज्यूम होगा, ओके, ब्लॉक में आएगा, शेड्यूलिंग में जाएगा, शेड्यूलिंग के बाद उसको रनिंग में जाएगा, और रनिंग में जाने के बाद वो जाएगा एग्जिट में. ठीक है, और अगर वो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिसोर्स उसको मिल जाएंगे और एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, एक सिनेरियो ऐसा भी है कि अगर उसको नहीं मिलता तो क्या करेगा, उसको उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, तो द प्रोसेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बफर स्पेस, जैसे सस्पेंड में, ब्लॉक्ड सस्पेंड में पड़ा रहेगा तो उसको एक टाइम पर मतलब एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब फ्लश्ड आउट हो जाएगा क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. नाउ द प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इनटू द रनिंग स्टेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा. एज सुन एज वी टर्मिनेट, all the states will be, all the states of A will be removed from each and every buffer, मतलब यहाँ से निकाल देगा. ठीक है, यहाँ से भी निकाल देगा, यहाँ से अगर आया है तो यहाँ से भी निकाल देगा, यहाँ से भी निकाल देगा, और यहाँ से भी. तो each and every 5 state process model will remove the process. That is why जैसे मीन्स प्रिंटिव प्रोसेस मीन्स जैसे समझाया कि कोई भी कर्नल प्रोसेस है, अगर वो एग्जीक्यूशन में जाती है
तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा, मीन्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डोंट मेक योर प्रेजेंस ओवर द चैट बॉक्स, ओके, मेक योर प्रेजेंस ओवर द गूगल फॉर्म वॉट एवर आई हैव शेयर्ड द लिंक, ओके ओके, गूगल फॉर्म ऊपर તમે ક્લિક કરજો, ઓકે, વિલ રીજોઇન ઇન